Good morning everyone. In my previous video, I discussed the story of the suitor and Papa. In this video, I am going to discuss the most important character of the story, Pyotr Petrovich Milkin. An important character. The whole story revolves around Pyotr Petrovich Milkin, who plays the role of a young lover in the story. So let's start the character. Pyotr Petrovich is a young man in the story, The Suitor and Papa, written by a Russian writer, Anton Chekhov. He plays an important role in the story. He is the main character in the story. The character sketch of Pyotr Petrovich Milkin is discussed under the following headings. He is a lover and suitor in the story. He is a suitor in the story. He is a regular visitor to the house of Kondreshkin, who is the father of 7 daughters. He appears to be in love with Nastya. Like a lover, he spends whole days with Nastya's family. He has dinner and supper there. He sings love songs. He goes for walks with Nastya. He offers her bunches of flowers. To all appearances, he is lover. People think that the two will get married. Even Nastya's father has this opinion. So हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो उनके घर में जाता था, नास्तिया के साथ घूमता था, ठीक है, उसके साथ उसके लिए वो फ्लावर्स लेके जाता था, तो कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज़ जो थी, जो उसकी जैसे वो काम करता था, जो एक्शन वो करता था, उन सब से ये लगता था कि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करता है, वो उसका लवर है. और ये लोगों को भी यही लगता था, और जो उसका फादर था लड़की का, उसको भी यही लगता था कि शायद वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करता है. तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ ए लवर एंड सूटर इन द स्टोरी. अब नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट वन इज ही इज़ ए चिकन हार्टेड मैन. Pyotr is a chicken hearted man. He lacks guts to marry a girl with whom he is in love. He behaves like an irresponsible lover. The story doesn't tell us why he doesn't want to marry. If Nastya's and he do not have similar views and convictions, then he should not have played the role of a suitor. तो हम कह सकते हैं कि उसमें वो गट्स नहीं थे. चिकन हार्टेड मैन था वो, यानी कि एक डरपोक किस्म का, जब उसके दिल में इतनी जगह नहीं थी. एक दरिया दिल जैसा इंसान होता है, वैसा वो नहीं था. उसमें वो गट्स नहीं थे कि वो उसे शादी कर सके जिसके साथ वो प्यार करता है. और उसने एक इररिस्पॉन्सिबल लवर की तरह जो था बिहेव किया था. कारण हमें कोई पता नहीं है उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों उसे शादी नहीं करना चाहता था. अगर उनके सिमिलर व्यूज़ नहीं थे, वो उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, तो कहीं ना कहीं पाइटर पेट्रोविच मिल्किन को एक सूटर की जो रोल था वो प्ले नहीं करना चाहिए था. वो उसका जो लवर था उस रोल में उसको नहीं गाना चाहिए था. उसको उसके साथ एक नॉर्मल वे में उसके साथ रहना चाहिए था. थर्ड वन इज़ ही इज़ वीक, नर्वस एंड ईजली एजिटेटेड पर्सन. Pyotr is weak, nervous and easily agitated. He feels embarrassed by rumors. He feels upset when his friends ask him about his marriage with Nastya. He goes to the house of Kondreshkin and tells him that he doesn't want to marry Nastya. He wants to leave his house in hurry. तो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर इंसान जिसमें गट्स नहीं थे, ठीक है, वो जल्दी से वो परेशान हो जाता था जब उसको बाकी उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं. उसको ये पता चलता है जैसे अफवाह फैली हुई थी कि वो शादी करने वाला है, और उसके फ्रेंड्स जब उसको ये बात बोलते हैं तो वो इमीडिएटली कोंड्रेश्किन के पास जाता है और उसको बताता है कि वो उसकी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा. और उसको कहीं ना कहीं इस बात की शर्म भी आती है. उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसने जो है वो लोगों को ये बात पता चल गई है, ये र्यूमर्स फैल गए हुए हैं. ही इज़ इमैच्योर एंड इररिस्पॉन्सिबल. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है कि वो इमैच्योर था और इररिस्पॉन्सिबल था. Pyotr Petrovich Milkin is immature and irresponsible man. He doesn't behave like a responsible man. He tells Kondreshkin that he has several demerits. He says that he is a drunkard. He takes bribes. He is on trial in case of embezzlement. He further says that he is living under a false name. He even says that he is mad. He tells all lies to avoid marriage. He gives the impression of being a fake lover. He is suitor only in name. We can only pity such a person. इमैच्योर रिस्पॉन्सिबल, इतने बहाने वो बनाता है. वो कहता है कि वो पागल है, उसने
कहीं ना कहीं धोखा किया हुआ है, उसके कारण वो एक क्रिमिनल है, भागा हुआ है, उसको जेल वापस हो जाएगी। वो एक अपना नाम छुपा के एक रियल आइडेंटिटी जो है उसने वो छुपाई हुई है, उस नाम से वो नहीं रह रहा है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि वो इमैच्योर था, वो एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन था। तो कहीं ना कहीं जो वो एक लवर था उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा नहीं पाता है। तो ये जो कैरेक्टर हमने अभी किया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पेपर में ऑलमोस्ट काफ़ी बार आया हुआ है और आता भी है। तो आप इसे पढ़ें और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।